Thank you again. Let me move on to CSC. I'm getting bombarded by people saying that why are you not asking CSC questions? Dr. Tyagi, first of all, the general generic question is, can CSC or through CSC people get loans for VLE? That's the first question. And how can rural VLEs help implement Atmanirbhar Bharat? So you have to explain this whole thing in these 2 points. Could you please? A loan, the first question we said that CSC through our association with one bank are what is called business facilitator, BF. The BF can generate lead for a loan. So the person doesn't have to go to the branch, he just upload the documents and the branch sanctions it and it disperses. And it takes about 24 hours to sanction a loan for about buying a scooter or a car or something of that nature. So not only CSC can take loan from for its own purpose, but it also can extend loan to the people where it is operating. The community can. There are a lot of people buying tractor loans. There are people who bought car loans, the scooter loans. Somebody want to buy a refrigerator, consumables. All these are there. I think the banks are also realizing the market in rural India, and therefore they're also supporting quite a lot. They're incentivizing CSC operators in generating those leads and extending loan. So that is one. So CSC can extend loan for itself, can take loan for itself, and also extend for the community in which leads. The second, which you mentioned, that how does CSC promote Atmanirbhar Bharat? I did explain that the Atmanirbhar Bharat for us is to create inclusive society, inclusive and empowered society. And inclusive and empowered society, creating especially for 50% of people who live in rural India, CSC plays a very significant role. The point on financial inclusion services, we do banking, insurance, pension, all three of them. We do telemedicine, which I mentioned, and teleconsultation. We also do diagnostic, some part of it, and also medicine dispensation through electronic media. Everything is electronic. We don't do any physical documents in that format. And सर then एक we थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, मैं लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग ये जो आपने बताया है इसको थोड़ा सा संक्षेप में हिंदी में भी बताएं, बिकॉज लॉट ऑफ योर पीपल आर ऑनलाइन एंड दे आर नॉट गेटिंग इट. तो Right, I was going to say that. Yeah. इसको साथ साथ थोड़ा सा हिंदी में बताएं, I and then thought I'll move on to the next important question for you. okay. I thought you're since you're foreign correspondent clubs. No, that's okay. No, I appreciate that. No, it is good for us, but I think because you. I know them very well, so they all like to know Hindi. Yeah. तो CSC अपने लिए लोन ले सकती है, वो क्योंकि बैंकिंग फैसिलिटेटर है एक बैंक का, और दूसरे लोगों को भी लोन दिला सकती है. किसी को ट्रैक्टर लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, और बड़े बड़े EMI शॉर्ट, ये बहुत अच्छे EMI, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, बैंक ने इंसेंटिव दिया है, और CSC को मार्जिन मिलता है. एवरी लीड इज जनरेट, ही गेट ए मार्जिन. सो इट्स ए बिजनेस एक्सटेंशन ऑफ लोन थ्रू CSC. कम्युनिटी के लिए, CSC के लिए इनकम जनरेशन होता है. बैंकिंग के सारे काम CSC कर सकता है. जैसे मैंने कहा, वो लोगों को बैलेंस इंक्वायरी उनके अकाउंट में ले कर सकता है, उनको उनके लिए फंड ट्रांसफर करा सकता है, और वो अपने पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं. और CSC क्योंकि बाकी पैसे कलेक्ट करते हैं, जैसे बिजली के बिल कलेक्ट करता है, तो उसका कैश होता है, उसी कैश को यूज करके लोगों को फंड भी दे देता है इन केस दे वांट टू. और क्योंकि हम आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम करते हैं, यूज करते हैं, तो किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर को पैसे निकाल के दे देता है. ही इज एक्चुअली इंटरऑपरेबल. वो किसी भी बैंक के अकाउंट के पैसे आप CSC से निकाल सकते हैं. आपको सिर्फ अपने बैंक का नाम बताना है और अपनी उंगली को यूज करना है फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, एंड दैट्स व्हाट दे डू इट. और गांव में लोगों में जाकर के ये करता है. एक वो टीचर का, जैसे मैंने बोला था, हम एजुकेशन के लिए बहुत करते हैं. हमारी फाउंडेशन ही एजुकेशन है, पढ़ाई ही हमारा फाउंडेशन है. तो हम करीब गांव में किसी को भी कोई भी पढ़ाई करनी है, CSC इसकी मदद कर सकता है. कोई चीज की तैयारी करनी है, किसी एग्जाम की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो भी CSC मॉक टेस्ट देता है, वो छोटे पैसे में. फ्री कुछ नहीं है, नथिंग इज फ्री, फॉर एवरीथिंग सिटीजन्स टू पे. मतलब लोगों को पैसे देने पड़ते हैं. ये कंसेप्चुअली है, क्योंकि हम किसी से पैसे लेते नहीं है, तो लेकिन उसको पैसा दे, पर बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम पैसे देने पड़ते हैं, विच ए पर्सन कैन अफोर्ड. और फ्री की वैल्यू नहीं होती, पैसे लेके फिर वो डिमांड भी करता है. सर्विस ऑल्सो इज वेरी गुड. तो DBT जैसे बोला, डिजिटल डॉक्टर, डिजिटल बैंक और डिजिटल टीचर, ये तीनों CSC काम करता है. अगर हम तीनों फैसिलिटी को गांव में लोगों को करा दें, और फार्मर का सपोर्ट हम करते हैं, हम फार्मर के लिए इनपुट सप्लाई करते हैं, उसके प्रोड्यूस भी प्रोक्योर करते हैं, और उसको टेली एडवाइजरी सर्विस भी देते हैं. हमने KV की जो ICR के साइंटिस्ट हैं, उनको अपने सिस्टम के साथ जोड़ा है,
फार्मर अपनी क्रॉप को वहां पर दिखा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एडवाइस ले सकता है, उसके क्रॉप में कोई पेस्ट है, और या फिर उसको कोई एडवाइस सीड के बारे में पूछना है, तो फार्मर को अब केवीके में जाने की जरूरत नहीं है, वो साइंटिस्ट से एडवाइस ले सकता है, एंड दीज आर ऑल बाय गवर्नमेंट साइंटिस्ट, देयरफॉर नो प्रॉब्लम। इस तरह डॉक्टर्स हमारे पास आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी की आप जिस मर्जी से कर लीजिए। वी हैव अपोलो डॉक्टर्स, इफ यू वांट टू टॉक टू अपोलो डॉक्टर, गांव में बैठ के छोटा नॉमिनल फी दे के अपोलो के डॉक्टर से आप एडवाइस ले सकते हैं। तो ये सब लोगों को, कम्युनिटी को एम्पावर और इंक्लूसिव बनाने के लिए, एंड विच इज व्हाट वी बिलीव इज आत्मनिर्भर भारत। तो सीएससी का तो बहुत बड़ा रोल है, और क्योंकि हम भारत नेट भी ऑपरेट करते हैं और इंटरनेट देते हैं, अभी एफटीटीएच कनेक्शन दे रहे हैं लोगों को, वी आर ट्राइंग एंड हेल्पिंग कि लोगों को इंटरनेट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट आत्मनिर्भर भारत विदाउट इंटरनेट, दैट्स अ फैक्ट, एंड मिस्टर मैथ्यू ऑफ कोर्स will also say that unless we have internet, in fact somebody said why not make it essential service, why not make it so attractive to people कि ये जरूरत है, इसको जल्दी से करना है, and do that। अगर 6 लाख गांव में 6 लाख में गुड क्वालिटी इंटरनेट सर्विस होगा तो देश आत्मनिर्भर भारत अपने आप बन जाएगा। एंड इफ यू कैन क्रिएट अ सिस्टम ऑफ दैट नेचर, सीएससी इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल। हमने जितनी हमारे बच्चों की कैपेसिटी है, दे बिकम टेक्निकली क्वालिफाइड, नाउ दे कैन इवन रिपेयर, अभी रिपेयर कर देते हैं ऑप्टिकल फाइबर को, वो रिपेयर भी करता है, मेंटेन भी करता है, और उसको चलाता भी है, और उसको इंटरनेट को बेचता भी है, एंड ही ऑफ कोर्स अर्न्स इनकम, एंड ही एम्प्लॉय टू मेनी पीपल। सो गांव के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, मैनेज करना इज व्हाट इज स्किलफुल। आप ये गांव वाले बच्चों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, बहुत ही अमेजिंग है, दे आर टेक्निकली वेरी क्वालिफाइड। एंड ऑफ द डे कोई भी लार्ज सर्विस प्रोवाइडर भी उन्हीं को यूज करता है, गांव में अगर ऑपरेट कराना है तो उन्हीं को सर्विस को लेता है। वी आर सेइंग, वी डायरेक्टली सेइंग कि सारा पैसा आपको जाएगा, देयर नो इंटरमीडिएशन, वी आर एक्चुअली गेटिंग ऑल द मनी पेड टू हिम, सो दे आर वेरी हैप्पी filled and they are safe and secure in that format। so आत्मनिर्भर भारत में लोगों को सारी सर्विस उनके घर पे मिल सके और उनको सरकारी ऑफिस जाना ना पड़े किसी भी काम के लिए, और अपनी चीजों को, अपने प्रोड्यूस को बेच सके। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं छोटी छोटी चीजें बनाती हैं, हमारे ग्रामीण स्टोर से बेचती हैं। हमारी एक महिला ने छत्तीसगढ़ में 5 लाख का सामान बेच दिया, एक ट्रेडर खरीद के ले गया, बिकॉज शी वाज मेकिंग एवरीथिंग ऑर्गेनिक उपले बनाती, गोबर के उपले विच आर सोल्ड सेंट टू यूएस, तो वो अमेरिका में भेजे जाते हैं, वो भी बनाती सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं। तो मैंने बताया कि सीएससी लोगों की मदद कर रहा है, उनकी इनकम जनरेशन में, उनके प्रोड्यूस को सेल करने के लिए सपोर्ट कर रहा है, फार्मर को सपोर्ट कर रहा है, उसको इनपुट परचेज के लिए। हम फर्टिलाइजर और सीड भी बेचते हैं, वी एक्चुअली सेल फर्टिलाइजर सीड थ्रू इफको, वो भी ऑनलाइन सप्लाई करते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मेरा एक सवाल है सर, आप तो गवर्नमेंट में रहे हैं, यू हैव बीन एन आईएएस ऑफिसर, आप गवर्नमेंट से निकलने के बाद आप कह रहे हैं गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बड़ा मजा आ रहा है सुन के, but you see, where does the government actually stand? There are two important statements you made, and fortunately I understand the game. One is that BharatNet should actually become what it is poised to or aspired to become. That means we should have sufficient bandwidth available at that last mile level, so that people are connected by the net, one, to educate themselves, secondly, to find skilling of whatever sort, so that they can get into some sort of a self-employment or employment circle, and or become small scale or micro scale, not even medium or large scale manufacturers of some sort. तो ये हो रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है, कब खत्म होगा? भारतनेट ट्रूली वो जो आप कह रहे हैं वो ड्रीम को अचीव कर लेगा? मुझे पता है कि बहुत सारे आपके ये जो क्या होते हैं 650 whatever blocks or levels they are, वहां तक पहुंच गया है, but is it, see, digital transformation, even World Bank says for continents like Africa is the key. There will be no growth and development, there will be no increase in GDP, we all understand that, but वो कब होगा, कैसे होगा, हो रहा है नहीं हो रहा है? एंड ये जो आप सर्विसेज को रिप्लेस करने की बात करें, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि तेलंगाना में फॉर एग्जांपल वोटर आईडी कार्ड, बहुत सारी चीजें अब सीएससी को दिए जा रही है, लेकिन ये अक्रॉस द कंट्री नहीं दी जा रही हैं। तो ये सब कब तक खत्म होगा और इसको कैसे आप आगे बढ़ा रहे हैं? ये तो एक तो क्योंकि फेडरल है तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ स्टेट बहुत अच्छे हैं। मैं एग्जांपल आई विल लाइक टू नेम ऑल्सो, हरियाणा में आप सब कुछ सीएससी में कर सकते हैं, अपने टैक्स भी सीएससी में जमा कर सकते हैं, दैट्स ओनली स्टेट। बच्ची वो स्टेट हैं, कुछ स्टेट अच्छी हैं,
कुछ स्टेट स्लो हैं, and that we should live with it. That every state cannot be the same pace and same path. So that's what the democracy is built on. So therefore, conceptually, everybody is falling in line, and we are finding a lot of changes now happening. अभी बहुत परिवर्तन है, बहुत change है, लेकिन वो वाला change नहीं है जो हमने कहा था, cash on delivery, G2C cash on delivery. अगर मैं फ्रिज खरीद सकता हूँ तो मैं अपना राशन कार्ड भी अपने घर में ले लूँ और मेरे को मिल जाए और मेरा इलेक्शन कार्ड भी मेरे घर में आ जाए, ये वाला काम करने के लिए अभी बहुत थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. It'll take time, but I think end of the day this will happen. This has to happen. इसमें inevitable है. And fortunately, COVID has actually thrown those opportunities to try and do. हमने कभी ग्रामीण स्टोर की सोचा भी नहीं, कल्पना नहीं हुई. Had there been no COVID, we would have not created a ग्रामीण store because we never believed that rural India will have face problem in buying things because they also couldn't go out. So we created a store for them, and that's how it is working in that fashion. But let me ask, एक सवाल और पूछना है आपसे कि ये CSC का आप इतना एक्सटेंशन कर रहे हैं कंट्री वाइड और ये विलेज पंचायत ब्लॉक लेवल पे भारत नेट पहुंच रहा है. You see, India has had a very beautiful system of post office at the last mile. Every place has a post office that covers either 1, 2, 5 village based on the population area. Post office has been digitally enabled, e-enabled. Post office also serves as a bank, as a repository of information. You can keep money there, you can transact. We don't need a Western Union or any other such solution provider. How is CSC tying in with the post office in some way and enabling that digital, sort of connect? मैं पोस्ट ऑफिस के आपके साथ शेयर कर लूँ. इस देश में 6 लाख गांव हैं और पोस्ट ऑफिस जो डिजिटली जो पोस्ट ऑफिस है वो सिर्फ 25,000 ही है. बाकी उनको बोलते हैं EDPO बोलते हैं, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस, सिंगल मैन पोस्ट ऑफिस, विच आर अबाउट 1,10,000. तो 6 लाख गांव में 1,10,000 EDPOs हैं, and they be traditionally engaged. Some of them become very old. For them to imbibe the culture of using technology, a little more difficult. Assimilation of culture, they do it. Post office is also like government. वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सैटरडे संडे बंद हो जाता है. मेरा CSC बंद नहीं होता है. It is open 24 hours. It also goes to the house when somebody needs their support. It also helps quite a lot in doing social work for them, which a post office has limitation. I'm not saying government cannot do it. Government can do it. That way there are 250,000 panchayat. There's a panchayat secretary, there's a panchayat bhavan, and the Bharat land bill. You can do through panchayat, but that panchayat secretary is 80% of the time used for other purposes, election duty, flood relief, there is some problem, meeting. He is never available to a citizen. What is available to citizen is a common services. This entrepreneurship model driven by local person is a great story, and there is no substitute for it. The government is trying. See, we are not saying, we are also not exclusive. We are saying let them do their own house, but give an option to the citizen to choose whether he want to go to the post office to draw his money or he want to go to CSC and draw the money. Post office also is a post bank. It is a payment bank. That can't lend money. It can only allow people to withdraw the money. We are also creating a facility where you can even take money. The assets can be created. Not only liabilities for bank, we can also create assets for